Hello students, welcome to standard 10. Today we will study chapter number 15, probability. Probability is a part of statistics. We have already studied this chapter in standard 9 also. But here some difference is there. Some experimental values we have studied in standard 9. Now we are going to study theoretical experiments. So probability is as usually heard word. In day-to-day life we use this word very frequently. So what is probability? Probability is in the theoretical value P of E. The P for probability and E for event. So P of E equal to possible outcomes upon total outcomes. Okay, so probability of event E equal to possible outcomes upon total outcomes. So what is total outcomes and what is possible outcomes? So if we do any experiment, now what is experiment? An activity, any activity, if we are tossing a coin, if we toss a die, if we shuffling the playing cards, these all are activities. So this type of activity is called experiment. Now total outcomes. So in an experiment there are some events also. If we toss a coin, then there will be two events happen. One is coming head and another is coming tail. Okay, so for a coin, two events are there, coming head and coming tail. Okay, coming head or coming tail. So these are called two events. So event is possible outcomes of a trial are events. ओके कोई भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो उसमें जो दो पॉसिबिलिटी मिलती है, क्या आएगा उसका रिजल्ट, हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये दो इवेंट हो गई. सो इवेंट ई इवेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर फ्रॉम ए टू जेड. इन एन एक्सपेरिमेंट देयर आर मेनी इवेंट्स आल्सो पॉसिबल. That's why we have taken here total outcomes. So total outcomes is total possible events. Okay, now possible outcomes. What are possible outcomes? So possible outcomes are the probable, जो होगा either सम में जो वैल्यू दी है या तो सम में जो इवेंट दी है. For that event what are possible outcomes. Okay, so if a coin is tossed, then one event is coming head. Coming head is become one possible outcome. Another possible outcome for coming tail. Okay, if we have asked what is probability to come head, then we have to consider only coming head event and it will become possible outcome for us. Okay, so
here we have cleared probability as a theoretical values. Now event is most important thing we have to understood. So many types of events are there. First, equally likely events. What is equally likely events? The events are said to be equally likely if there is no reason to expect anyone in preference to any other. मतलब जो भी इवेंट या तो एक्सपेरिमेंट हम ले रहे हैं उसमें जो इवेंट बनती है इसमें हम दूसरी कोई चांस एक्सेप्ट नहीं कर सकते. ओके, सपोज ये कॉइन टॉस किया तो उसमें एक हेड आएगा एक टेल आएगा. अदर देन दैट वी विल नो गेट एनी अदर सिचुएशन. इफ अ बेबी इज बॉर्न तो आइदर इट इज बॉय और गर्ल. Okay, so these type of events are called equally likely event. Some questions are there in question papers like true or false. So this type of question is also having equally likely probability. Either they are called equally likely events. Okay, so events, first one equally likely. Event, another one elementary event. Elementary event. Elementary event, so an outcome of a random experiment is called an elementary event. It is also called primary event. In our book elementary event is given, we also call it primary event. Okay, so what is elementary event? तो elementary event में जो भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसमें जो आउटकम मिलते हैं उसमें हर एक इवेंट एलिमेंट्री इवेंट हो जाती है. जैसे कॉइन टॉस करेंगे तो हेड आने की इवेंट टेल आने की इवेंट, ये दोनों इक्वली लाइकली इवेंट भी है एलिमेंट्री इवेंट भी है. ओके, तो एलिमेंट्री इवेंट प्राइमरी इवेंट भी इसको बोलते हैं. एंड probability of all elementary event is always 1 if probability of coming head is denoted by P of H and probability of coming tail is denoted by probability of T. So sum of these two probability is always 1 because these two are elementary events. So sum of probability of all elementary events is always 1. Okay, now we will see complementary events. Third one, complementary. Complementary event. Okay, complementary event. Complementary means if event A is happen, then A bar, event A is happen. Okay, then A bar is not. That means if we toss a coin, then head is coming, then tail will not come. So if we take event A as coming head,
then A bar means complementary of event A is, it is not tail. Okay, so event A is called event and A bar is called its complementary event. If we take A bar as event, then its complementary is A. मतलब ये दोनों एक दूसरे की complementary events है. Now probability of event A and probability of event A bar means it's complementary. So the sum of probability of complementary event is always 1. This is another statement. Okay, so elementary event की probability का sum भी 1 होता है, complementary event का भी, complementary event के probability का sum भी 1 होता है. एलिमेंट्री इवेंट बहुत सारी हो सकती है, जैसे यहां पर वी हैव टेकन कॉइन. इफ वी टेक अ डाई, then we can get 1, 2, 3, 4, 5 or 6 die. You know that paso. Okay, die. Snake and ladder गेम खेलते हैं ना, उसमें जो डाई यूज होती है वो, उसके ऊपर डॉट होते हैं 1, 2, 3. या तो लूडो आप खेलते होंगे, उसमें भी देखा होगा. तो ये है डाई. 1, 2, 3, 4, 5 and 6 numbers are there, either dots are there. So here coming 1, either coming 2 or 3 or 4 or 5 or 6, these are all primary event, either elementary events. And probability of these all event, if we do sum of the probability of all these event, then it will also always 1. Okay, but complementary event only 2, either one is happen, then another is not happen. So complementary event एक दूसरे की नेगेटिव इवेंट भी है. ओके, नाउ श्योर इवेंट. Okay, sure event. What is sure event? If an event is 100% will happen, then it is called a sure event. Like sun is rising in the east. This is sure event, and probability of sure event is always 1. Okay, probability of sure event is always 1. श्योर इवेंट के बाद इम्पॉसिबल इवेंट. इम्पॉसिबल इवेंट. इम्पॉसिबल इवेंट मीन्स जो इवेंट हो ही नहीं सकती. जैसे सन सेट्स in the east, either sun rises in the west. Is it possible event? No. That's why it is called an impossible event. So probability of impossible event is always 0. So probability of sure event is always 1, and probability of impossible event is always 0. So कोई भी इवेंट 100% होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है. कोई भी इवेंट E जिसकी प्रोबेबिलिटी P ऑफ E 100% होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1, और जो नहीं होती है मतलब इम्पॉसिबल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0. मीन्स
the probability is lie between 0 and 1. 0 भी हो सकती है एंड 0 से बड़ी हो सकती है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, आइदर 1 या तो 1 से कम. सो probability of event E is coming between 0 and 1 including 0 and 1. मतलब 0 less than equal to probability of E less than equal to 1. Okay, so this is also most important result, you have to remember that. So every probability is either 0 or greater than 0 or any probability is 1 or less than 1. Value of probability never comes in negative and it will never come beyond 1. मतलब 1 से ज़्यादा probability कभी नहीं हो सकती. So whenever you do sums, then remember that always numerator is less than denominator. Okay, denominator में वैल्यू जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, न्यूमरेटर में जो वैल्यू होती है वो हमेशा कम होनी चाहिए, तो ही प्रोबेबिलिटी सही है. इफ़ यू डू सम एंड आंसर इज कमिंग इन डेसिमल पॉइंट, then it is always coming 0 point something. ओके, मतलब 0 से थोड़ी सी बड़ी पर 1 से कम होनी चाहिए. ये आंसर नहीं आ रहा है, जैसे कि कोई प्रोबेबिलिटी का आंसर 2/5 आता है. ओके, तो ये डिनोमिनेटर 5, न्यूमरेटर 2. सो दिस इज राइट. ये नोट आप पॉज करके नोट कर सकते हैं आपके नोटबुक में. Second page. Instruments we will see in second session. Okay, till then keep learning. Thank you. Hello students, now we will see instruments which are used to understand probability. Okay, तो probability को समझने के लिए हम आज इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे जिसमें कॉइन्स, डाई एंड प्लेइंग कार्ड्स शामिल है. ओके, तो सबसे पहले हम कॉइन्स से स्टार्ट करेंगे. कॉइन्स. कॉइन्स, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने मिलेंगे? तो टोटल आउटकम्स, कॉइन की साइड कितनी होती है? 2 sides are there, so 2 and raised to n, मतलब n is number of experiments. हम ये एक्सपेरिमेंट कितनी बार कर रहे हैं वो नंबर है n. एक बार हम टॉस कर रहे हैं तो n की जगह पर 1 आएगा. ओके, सो व्हाट इज n? तो वेयर n is equal to number of experiments. ओके, n is number of experiments. तो यहाँ पर सपोज हम 1 टाइम टॉस कर रहे हैं तो n is equal to 1, that means 2 raised to 1, so it is 2. तो when we toss a coin once, मतलब एक ही बार कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 raised to 1 मतलब 2.
रिजल्ट मिलेंगे कौन कौन से? तो या तो हेड होगा या तो टेल होगा, मतलब टोटल आउटकम कितने हो गए? 2, हेड एंड टेल। इसमें से पॉसिबल आउटकम वो जब हमें सम पूछा जाएगा तब हमें देखना है पॉसिबल आउटकम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आस्क्ड। ओके, अभी हम टोटल आउटकम्स कितने मिलेंगे। सपोज कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, 2 टाइम कॉइन टॉस करते हैं तो n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर इट इज 4। तो हाउ मेनी रिजल्ट्स वी कैन फाइंड, मतलब टोटल आउटकम्स कितने मिलेंगे? तो टोटल आउटकम्स 4 मिलेंगे। कौन कौन से 4, मतलब वो कौन सी 4 इवेंट होगी? तो ये 4 इवेंट ऐसी होगी कि पहली बार टॉस किया एच आया, दूसरी बार टॉस किया उसमें भी एच आया, ये हो सकता है पहली इवेंट। दूसरा, पहली बार एच आया, दूसरी बार टी आया, ये दूसरी इवेंट। फिर पहली बार टी आया, दूसरी बार एच आया, ओके, ये तीसरी इवेंट। या तो पहली बार भी टी, दूसरी बार भी टी, ओके। तो दिस 4 टोटल आउटकम्स वी कैन फाइंड। ये 4 के अलावा कोई भी दूसरी इवेंट नहीं हो सकती जब हम एक कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तब, ओके। नाउ इफ यू टॉस अ कॉइन थ्राइस, मतलब कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स 2 रेज टू n, n की जगह अब हो जाएगा 3 क्योंकि हम 3 टाइम टॉस कर रहे हैं, ओके। सो 2 क्यूब इट इज 8। अब ये 8 रिजल्ट कौन कौन से मिलेंगे, मतलब कौन कौन सी 8 इवेंट होगी? तो सबसे पहले तो जब हम टॉस करते हैं तो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार क्या आ सकता है? तो तीनों बार सपोज एच आया तो एच एच एच, ओके, तीनों बार एच आया। फिर पहली बार, दूसरी बार एच, तीसरी बार टी आया। फिर एच, ये आया मतलब आ सकता है, ये कोई भी रैंडम ऑर्डर में हो सकता है पर आएंगे यही रिजल्ट, 8 रिजल्ट जो हम यहाँ पर लिखेंगे, ओके। तो ये पहला, ये दूसरा, फिर एच टी एच, मोड़ो अंदर आई, फिर टी एच एच, फिर एच टी टी, तो इस तरह से 2 क्यूब इक्वल टू 8, मतलब 8 रिजल्ट मिलेंगे। कौन कौन से 8 रिजल्ट? तो एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी एच टी एच, टी एच टी एंड टी। टी का मतलब टेल एंड एच का मतलब हेड, ओके। तो पहली बार टॉस किया, तीनों पर एच आया, मतलब तीनों पर हेड आया, तो एच एच एच। उसी तरह से सारे रिजल्ट मिलेंगे। अब इस पर से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो ये सब आपके ध्यान में होगा, तो आप इसमें से पॉसिबल आउटकम निकालकर आंसर दे सकते हैं। जैसे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू कम 2 टाइम्स हेड व्हेन वी टॉस अ कॉइन 3 टाइम्स। तो 2 टाइम हेड पूछा, तो यहां पर हमारी इवेंट क्या है? इवेंट ई इज इक्वल टू कमिंग 2 टाइम हेड, ओके, कमिंग 2 टाइम्स हेड, ये हमारी इवेंट है। इवेंट ई इज इक्वल टू कमिंग 2 टाइम्स हेड। तो 2 टाइम्स हेड है ऐसे कौन कौन से, ओके।
तो 2 टाइम हेड यहाँ पर है, देखो ये तो 3 टाइम है, मतलब नहीं आ सकता। 2 टाइम पूछा है, ओनली 2 टाइम। ओके, तो ये 2 टाइम है, ये हेड 2 टाइम है, ये हेड 2 टाइम है, यहाँ पर 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम, नो टाइम, मतलब ओनली 3 हेड विल गेट। ओके, सो पॉसिबल आउटकम्स बन जाएंगे 3 एंड टोटल आउटकम्स कितने, 8। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बिकम्स 3/8। यहां पर देख लेना ध्यान से, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। इससे उल्टा आया तो समझ लेना गलत है। ओके, नाउ हाँ, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि इफ यू टॉस अ कॉइन ट्वाइस, मतलब आप 2 बार कोई कॉइन को टॉस करते हो, या 2 कॉइन लेकर एक ही बार टॉस करते हो। ओके, 2 कॉइन लेकर एक ही बार टॉस करते हो, दोनों में रिजल्ट सेम ही मिलेगा। उसी प्रकार यहाँ पर 3 कॉइन्स एक ही बार टॉस करो, या एक कॉइन 3 टाइम टॉस करो, तो ये रिजल्ट जो 8 रिजल्ट्स है वो ऐसे ही मिलने वाले हैं। क्योंकि आप एक कॉइन 3 बार टॉस करेंगे तो आपको 3 बार देखना होगा, पहली बार क्या आया, दूसरी बार क्या आया, तीसरी बार क्या आया। ओके, तो तीनों टाइम एच 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 आ सकता है, तो इस तरह से ये होगा पहला रिजल्ट। तो यहाँ पर हमारा एक्सपेरिमेंट तो 3 बार टॉस करना है, मतलब 3 हो गए। अभी इसको हम टाइम बचाने के लिए 3 कॉइन एक साथ ले लेते हैं और एक ही बार टॉस करते हैं। अब तीनों कॉइन पर देखेंगे क्या आया, तो ये भी हमारे 3 कॉइन लिए, मतलब एक्सपेरिमेंट 3 हो गए। ओके, इसलिए 3 एक्सपेरिमेंट के लिए 2⁻3 मतलब 8। तो तीनों कॉइन पर सपोज एच एच एच, तीनों पर एच आ सकता है, या तो ये आ सकता है, ये। ओके, तो इस तरह से कॉइन यहाँ पर आपने समझ लिया। तो इतनी बात ध्यान में रखेंगे तो आप सम्स में जो भी इवेंट पूछी है उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे डाई। अब डाई में टोटल डाई, डाई मीन्स वो जो पता है आपको स्नेक एंड लैडर में खेलते हैं वो डाई। ओके, यो क्यूबिकल फॉर्म में होता है। तो टोटल आउटकम्स, अब डाई में कितनी साइड्स होती है, 6 साइड्स। तो 6 साइड्स होती है इसलिए 6 एंड नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, सपोज हम उसको 9 टाइम्स टॉस करते हैं। ओके, तो 6⁻n, जहां पर n है, जैसे आगे हमने देखा कॉइन में नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। ओके, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट है। सपोज हम डाई को एक बार टॉस करते हैं, तो टोटल रिजल्ट कितने मिलेंगे, टोटल आउटकम्स 6⁻1 मतलब 6। कौन कौन से, तो या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या तो 5 आएगा। ओके, या तो 6 आएगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डॉट में से कोई भी डॉट आ सकता है अप साइड पर। अब हम ये जो डाई है उसको 2 बार टॉस करते हैं, या तो 2 डाई लेकर एक बार टॉस करते हैं, मतलब नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट 2 हो जाएंगे। ओके, तो यहां पर डाई टोटल आउटकम्स फॉर डाई 6⁻n, 2 times we toss a die, either one die tossed 2 times, या तो 2 die tossed once, मतलब 2 डाई एक बार टॉस करेंगे। तो 6 स्क्वायर, 6 ये साइड्स ऑफ डाई है एंड
2 नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि हम इसको 2 बार टॉस कर रहे हैं। सो 6 स्क्वायर इट इज 36। तो 36 टोटल आउटकम्स मिलेंगे हमें जब एक डाई को 2 बार टॉस करेंगे। तो कौन कौन से 36 रिजल्ट्स मिलेंगे, तो ये जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। ओके, तो यहाँ पर लिखना आसान है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट लाइन सब में सेम है, देख लो। ओके, और 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 याद रखने की जरूरत नहीं, ऐसे ही याद रह जाएगा। अब ये जो रिजल्ट है ये टोटल आउटकम 36 है। ये 1 2 3 4 5 6 और ये भी 1 2 3 4 5 6। तो जितनी कॉलम उतनी ही रो, मतलब 6 6 जा 36, टोटल रिजल्ट 36 है। अब ये जो रिजल्ट्स आए इस पर से आपको कोई भी सम पूछा जा सकता है, जैसे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू कम बोथ द नंबर्स आर सेम ऑन डाई व्हेन वी टॉस अ डाई ट्वाइस। ओके, मतलब 2 बार डाई टॉस करने से दोनों बार सेम नंबर आपको मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप देखेंगे यहां से, तो 1 1 सेम नंबर हुआ, 2 2 सेम नंबर हुआ, 3 3 सेम नंबर हुआ। तो ये क्रॉस लाइन में आप जाएंगे तो पूरा क्या मिला, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ओके, तो ठीक से आपने लिखा है तो एकदम लाइन में आएगा। तो इस प्रकार से कितने रिजल्ट मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 6 ऐसी इवेंट है जहां पर, मतलब रिजल्ट है, इवेंट नहीं है। इवेंट तो एक ही है, सेम नंबर आने की इवेंट। ओके, सेम नंबर आने की इवेंट के पॉसिबल आउटकम कितने, तो जब दोनों टाइम 1 आएगा, दोनों टाइम 2 आएगा, दोनों टाइम 3, दोनों टाइम 4, दोनों टाइम 5, दोनों टाइम 6 आएगा। तो मतलब ऐसे हमें 6 रिजल्ट मिल सकते हैं। तो ये फेवरेबल रिजल्ट या तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए, 6, तो 6। ओके, तो ये इवेंट है हमारी कमिंग सेम नंबर बोथ द टाइम। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर 6 आएगा। एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36, क्योंकि हमने 2 बार टॉस किया है। ओके, अब इसमें आपको कैंसलेशन भी करना है, ध्यान रखना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही लिखना है, आप नहीं लिखेंगे तो 1 मार्क विल गो। ओके, 2 मार्क का सम है तो 1 मार्क जाएगा, 1 मार्क का सम है तो हाफ मार्क जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर 1/6, ओके, कैंसलेशन 6 6 जा 1 6 1 6 विल कैंसल। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/6। उसी प्रकार आप ध्यान से ये जो रिजल्ट है इसका स्टडी करेंगे तो सम वाले कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप जो 2 टाइम टॉस कर रहे हैं उसमें जो 2 टाइम नंबर मिलते हैं उसका सम कितना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान में रखना ये सब बातें बुक में नहीं है, सिर्फ एक टेबल बताया है, आपको ये सब इसमें से कंक्लूजन निकालना है। ओके, तो ध्यान से देखना कि 1 1, तो सबसे छोटे से छोटा नंबर 1 ही है, मतलब दोनों टाइम जो 1 आता है तो दोनों टाइम जो ऊपर 1 1 आया उसका सम होगा 2, मतलब ये दोनों का सम 2, मतलब कि 2 से कम सम वाला कोई भी रिजल्ट यहां नहीं मिलेगा। उसी प्रकार ज्यादा से ज्यादा नंबर 6 होता है, तो दोनों बार सपोज 6 आया तो दोनों ऊपर आने वाले नंबर का सम होगा 6 + 6 मतलब 12। ओके, तो सम 12। तो सम वाला कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाता है तो ध्यान रखना, 2 से कम सम वाला पूछा है तो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाती है, प्रोबेबिलिटी 0। 12 से ज्यादा सम पूछा है तो भी नहीं आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 6 ही है, 6 दूसरी बार भी सबसे बड़ा नंबर 6, मतलब 12 से ज्यादा सम नहीं हो सकता।
इसलिए 12 से ज्यादा पूछा है तो वहां पर भी ये हो जाएगी इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, अब बीच में बहुत सारे रिजल्ट है। सपोज ऐसे पूछा है कि दोनों पर जो भी नंबर आते हैं उनका सम 5 हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी। तो आप देखेंगे 1 4, ये दोनों का सम देखो, ये रिजल्ट मिला 1 4, तो ये दोनों की प्रोबेबिलिटी में ये एक रिजल्ट मिला 4 + 1 5। फिर आप ये लाइन में आएंगे पूरा, ओके, एक सीधी लाइन में, तो 2 3 5 सम हुआ, 3 2 5 सम हुआ, 4 1 5 सम हुआ, मतलब कितने रिजल्ट मिले 1 2 3 4। ओके, तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट सम 5 व्हेन वी टॉस अ डाई ट्वाइस। तो 5 सम मिलता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी। तो हमें सबसे पहले पॉसिबल आउटकम्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो ये इवेंट के पॉसिबल आउटकम कितने हैं, तो सम 5 कब कब आ सकता है, तो एक बार 4, दूसरी बार 1, एक बार 2, दूसरी बार 3, या तो पहली बार 3, दूसरी बार 2, या तो पहली बार 4, दूसरी बार 1। ओके, मतलब 1 2 3 4, 4 ऐसे पॉसिबल आउटकम है कि इस तरह से जो वो पासा मतलब डाई मिलेगा तो इसका सम 5 होगा। मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम यहाँ पर हमारी इवेंट अब है, इवेंट ई इज इक्वल टू, आपको ये सब फॉर्मेट में लिखना है, मैं बाद में समझाएंगे तो बताऊंगा। ओके, पहले यहाँ पर ई इवेंट लिखना है, इवेंट ई इज इक्वल टू कमिंग सम इज 5। ओके, तो 5 सम आता है, ऐसे कितने रिजल्ट है यहाँ पर 4 रिजल्ट है। ओके, 1 2 3 4, और टोटल आउटकम तो 36 ही है क्योंकि हमने डाई 2 बार टॉस की है, ध्यान में रखना। अब इसका कैंसलेशन करेंगे तो 9। ओके, 9 4 जा 4 4 विल कैंसल, 1/9, तो इसका आंसर मिलेगा 1/9 इज द प्रोबेबिलिटी। ओके, तो इस तरह से हमें कोई भी क्वेश्चन इस पर से पूछा जा सकता है। ये सम का आपको बताया, उसी तरह से प्रोडक्ट वाले सम भी आ सकते हैं, वो एक्सरसाइज में आएगा तो हम डिटेल में देखेंगे सम्स के साथ साथ। क्लियर? नाउ वी विल सी प्लेइंग कार्ड्स। तो प्लेइंग कार्ड्स, वो वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड जो हम वो बाजी पत्ता वो जो खेलते हैं ना वो, तो इसमें प्लेइंग कार्ड्स में टोटल आउटकम्स मतलब टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, तो टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, 52 कार्ड्स। ओके, टोटल कार्ड्स आर 52। कौन कौन से होते हैं, तो एक तो ए पहला होता है, इसमें 1 नहीं होता, ध्यान में रखना, ए होता है। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 10 तक होते हैं। उसके बाद जो है वो अल्फाबेटिक नंबर में होते हैं, जे मतलब जैक। ओके, जे मतलब जैक, क्यू मतलब क्वीन, एंड के मतलब किंग। ओके, तो ये कार्ड्स पर छपे हुए नंबर्स या तो अल्फाबेट्स इस तरह से होते हैं। और ये तो कितने हुए 13 हुए, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 10, फिर 11 12 13। तो ऐसे कितने होंगे, तो ये जो टोटल कार्ड्स 52 बताए हैं, मतलब ऐसे 13 13 13 कार्ड्स के 4 स्टैक होते हैं। ओके, तो इसमें स्टैक कितने, तो 4 स्टैक। स्टैक को आप शूट भी कह सकते हैं, शूट्स या तो स्टैक।
तो 4 स्टैक, कौन कौन से 4 स्टैक? तो हार्ट्स होते हैं सबसे पहले, हार्ट्स होते हैं, दूसरे डायमंड्स, ओके। हार्ट्स मतलब आप ये कार्ड्स देखेंगे या तो आप खेले होंगे तो इस तरह से शेप में होता है, ये है हार्ट्स। डायमंड, ये शेप में होता है डायमंड, ओके। फिर होता है स्पैड, स्पैड ये शेप में होता है स्पैड, ओके। और लास्ट में होता है क्लब, क्लब, क्लब होता है ये शेप में, ओके। तो हार्ट्स, डायमंड, स्पेड एंड क्लब। अब ये जो हार्ट्स एंड डायमंड्स है, ये दोनों कितने कितने होते हैं? तो हमने देखा 13 होते हैं, ओके। ये 13 होते हैं, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, ये 13, 13 के 4 शूट हो गए। अब ये दो जो है उसका कलर क्या होता है? कलर, कलर। तो ये दो जो है वो रेड कलर के होते हैं, ओके, रेड कलर के। ये नॉर्मल लैंग्वेज में या तो जो डे टू डे लाइफ में हम हार्ट्स को सिर्फ रेड भी बोलते हैं, पर यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि एग्जाम में रेड पूछा है तो ये दोनों रेड ही होते हैं, बिकॉज इट्स अ कलर, ओके। और वहां पर रेड नहीं पूछेंगे, वो सिर्फ रेड वाला है तो हार्ट पूछेंगे, या तो डायमंड पूछेंगे, स्पेड पूछेंगे, क्लब पूछेंगे, ओके। आपको कलर पूछा है तो टोटल कार्ड 13 प्लस 13, ये रेड कलर के 26 कार्ड हो जाते हैं, ध्यान रखना। तो सिर्फ रेड कलर पूछा है तो पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे 26। उसी प्रकार ये दोनों ब्लैक कलर्ड होते हैं, ओके, ब्लैक कलर्ड। तो ये हो गए टोटल 26 रेड कलर के एंड ब्लैक कलर के भी 26, ओके। अब इसमें ये न्यूमेरिकल कार्ड है, कितने हैं न्यूमेरिकल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऐसे 4 टाइप्स के, तो 9 4 जा 36 कार्ड न्यूमेरिकल होते हैं, ओके। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर जे क्यू के ये 3 कार्ड ऐसे हैं जिस पर एक फोटो छपी होती है, मतलब उसको फेस होता है उसके ऊपर। जैक मतलब गुलाम का फेस, क्वीन रानी का फेस, किंग तो राजा का फेस होता है। मतलब ये 3 जो कार्ड है उसको फेस कार्ड बोलते हैं, ओके। सो फेस कार्ड, फेस कार्ड्स कितने? तो फेस कार्ड्स है 12, क्योंकि ये 3 और ऐसे कितने? ये इसके 3, इसके 3, इसके 3, मतलब 3 नहीं, सॉरी 4, ओके। इसके 4, इसके 4, इसके 4, इसके 4, ऐसे ये तीनों के मतलब 4 3 जा 12, ओके। टोटल फेस कार्ड्स आर 12, ओके। फिर न्यूमेरिकल कार्ड्स, न्यूमेरिकल कार्ड्स कितने होंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे टोटल 9 4 जा करेंगे 36, ओके। और ऐसे ही अल्फाबेटिक कार्ड,
अल्फाबेट वाले कितने कार्ड? तो अल्फाबेट कितने हैं? 1 2 3 4 है तो अल्फाबेट। ओके, तो ये 3 और एक 4, 4 अल्फाबेट। 4 4 जा 16, मतलब ये कार्ड्स हो जाएंगे 16। क्लियर? तो अल्फाबेट कार्ड है 16। तो ये आप ध्यान से नोट भी कर सकते हैं। ओके, नोट कर लेना इतना। नाउ कैलेंडर। कैलेंडर भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा कि बोर्ड की एग्जाम में भी ये जो कैलेंडर है उसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो कैलेंडर जो हमारी बुक में नहीं है, फिर भी यह मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूं जिससे आपको आसानी हो जाए। पहला है कैलेंडर में टोटल डेज। तो टोटल डेज सब जानते हैं, 365 डेज आर देयर। ओके, पर 365 डेज इन कॉमन ईयर और 366 डेज इन लीप ईयर। ओके, तो लीप ईयर में एक दिन ज्यादा होता है। ओके, और ये एक दिन कौन सा ज्यादा होता है? जो फरवरी में 29 डेज वाला मंथ आता है तब, मतलब लीप ईयर में आप एक दिन ज्यादा काउंट करेंगे। तो जब भी क्वेश्चन पूछा है तो ध्यान से देखना, इसमें कॉमन ईयर है कि लीप ईयर है। ओके, और लीप ईयर है तो खास करके क्या देखना है? मंथ ऑफ फेब्रुआरी, क्योंकि उसी मंथ में ही डेज का डिफरेंस होता है, बाकी कोई भी ईयर में कोई भी मंथ में डिफरेंस नहीं होता है। ओके, सो फेब्रुआरी आप देखेंगे, फेब्रुआरी 28 डेज इन कॉमन ईयर। ओके, कॉमन ईयर and 29 days in leap year. ओके, लीप ईयर। तो ये दोनों में डेज 28 29 होते हैं। अब ये एक्स्ट्रा डेज क्या है? तो हम देखेंगे कि ये जो वीक पूरा 28 डेज है उसमें कंप्लीटली वीक पूरा होने के लिए कितने दिन चाहिए? तो एक वीक 7 डेज का होता है। 1 वीक equal to 7 days. ओके, 1 वीक इक्वल टू 7 डेज। तो 7 28 डिवाइड बाय 7 करेंगे आप, तो 7 4 जा 28 हो गया पूरा। मतलब 28 डेज में कोई भी एक्स्ट्रा डे नहीं मिलता, क्योंकि उसमें रिमाइंडर 0 हो जाती है। ओके, 28 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 7 4 जा 28, तो रिमाइंडर 0 आएगी, मतलब एक्स्ट्रा डे नहीं है। 28 डे का मंथ है तो उसमें कंप्लीटली 4 वीक होते हैं, कोई भी दिन एक्स्ट्रा नहीं होता। ओके, तो यहां पर एक्स्ट्रा डे हो जाएगा 0। कब? जब ये 28 डेज का मंथ है तो 29 डेज का मंथ है तो ये इसको 7 से डिवाइड करो, 7 4 जा 28, तो 29 माइनस 28 1 रिमाइंडर आएगी, मतलब एक्स्ट्रा डे हो जाएगा 1। ओके, तो जब भी 29 डेज का मंथ फरवरी होता है तो उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है, मतलब 4 वीक कंप्लीट एंड ऊपर एक दिन ज्यादा। ओके, किस तरह से इसमें से क्वेश्चंस आते हैं मैं बाद में बताता हूं, पहले हम डेज ध्यान से देख लेते हैं। फेब्रुआरी के बाद ये दोनों फरवरी के हैं। फिर ऐसे मंथ होते हैं जिसमें डेज 30 होते हैं, डेज आर 30। ओके, तो ऐसे कौन कौन से मंथ है? तो आपको शॉर्ट में याद रखना है एजूसन। एजूसन मतलब अप्रैल, ए मतलब अप्रैल, जू मतलब जून,
सन, तो SEPT सितंबर एंड एन नवंबर। ओके, ये जो 4 मंथ है अप्रैल जून सितंबर नवंबर, ये 30 डेज के होते हैं। इसके अलावा बाकी जो भी मंथ बचते हैं वो सारे 31 डेज के हैं। ओके, बाकी जो भी रिमेंड, अब जानते हैं सारे 12 मंथ। तो जो बाकी बचे अप्रैल जून सितंबर नवंबर एंड फरवरी के अलावा जो भी बचे वो सब 31 डेज के होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई 30 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 मतलब एक वीक 7 डेज का होता है, इसलिए 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28, रिमाइंडर आएगा 2, इसलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा डेज मिलेंगे 2। ओके, मतलब 4 वीक कंप्लीट एंड 2 दिन ऊपर बचेंगे। एंड अब जो 31 डेज का मंथ है तो वहां पर एक्स्ट्रा डेज आ जाएंगे 3। ओके, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, इसीलिए एक्स्ट्रा डे 3। अब इसका मतलब क्या होता है, तो जब भी फरवरी मंथ है तो 28 डेज है, मतलब उस मंथ में कोई भी दिन एक्स्ट्रा नहीं होता है। 4 वीक कंप्लीट, एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं है। ओके, 29 डेज है तो एक दिन एक्स्ट्रा है। इसका मतलब कि ये मंथ में जो 7 डेज है मंडे से लेकर संडे तक के, ओके, तो ये जो है 28 डेज वाले मंथ में सारे डेज 4 टाइम ही आएंगे। 29 डेज का जब मंथ होगा तो इसमें एक दिन एक्स्ट्रा है। इसका मतलब कि कोई एक डे ऐसा होगा जो 5 टाइम आएगा, बाकी सारे 4 टाइम तो सारे डेज आएंगे, पर एक डे ऐसा होगा जो ये एक्स्ट्रा है, इसलिए वो 5 टाइम आएगा। तो ये कौन सा होगा डे, तो जो डे फर्स्ट डेट को होगा वही डे 5 टाइम आएगा, बाकी सारे आएंगे 4 टाइम। ओके, उसी तरह से 30 डेज का मंथ है तो उसमें 2 एक्स्ट्रा डे। इसका मतलब होता है कि 30 डेज वाले मंथ में कोई 2 दिन ऐसे होंगे जो 5 टाइम्स आते हैं पूरे मंथ में। ओके, तो ऐसे 5 टाइम आने वाले कौन कौन होंगे, तो जो फर्स्ट डेट एंड सेकंड डेट को जो डे होगा वो डे इसमें आएगा। सपोज अभी ये जून या तो अप्रैल, पहला ही ले लेते हैं अप्रैल। अप्रैल 30 डेज का है तो अप्रैल फर्स्ट डेट एंड सेकंड डेट जो डे होगा वही डे 5 टाइम आएगा। आप कैलेंडर आपके घर में होगा उसमें भी आप देख सकते हैं, बाकी सारे डेज 4 टाइम होंगे और फर्स्ट एंड सेकंड डेट पर जो डे होगा वो 5 टाइम होगा। उसी प्रकार जो बाकी बचे हैं जनवरी मई और अदर जो भी है वो सारे 31 डेज वाले, इसमें 3 दिन एक्स्ट्रा होंगे, मतलब डेट 1 2 एंड 3, ये 3 दिन में जो जो डेज होंगे वो 5 टाइम आएंगे, बाकी वाले 4 टाइम्स आएंगे। ओके, अभी क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू कम मंडे 5 टाइम्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो आपको क्या देखना है, अप्रैल मंथ पूछा मतलब कितने डेज, तो 30 डेज हो गए। अब आप एक चीज ध्यान में रखना, 31 डेज वाला कोई भी मंथ पूछा जाता है तो इसमें लीप ईयर है कि नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सिर्फ फेब्रुआरी पूछा है तो ही आपको ध्यान में रखना है कि लीप ईयर है कि नहीं है। यहां पर आपको अप्रैल पूछा तो भाई अप्रैल मंथ में कोई भी डे 5 टाइम्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो यहां पर आप देखेंगे कि भाई डेज कितने, तो डे तो 7 ही है मंडे से लेकर संडे तक के, मतलब 7 डेज आर देयर। इसमें से 30 डे ये जो रिपीट होते हैं उसमें एक्स्ट्रा कितने, तो 2। ओके, तो ये 2 डे है वो 5 टाइम आ सकते हैं, बाकी सारे 4 टाइम आएंगे। इसका मतलब है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू कम 5 टाइम्स मंडे,
डे, अब ध्यान में रखना, डे कोई भी पूछा हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी डे पूछा हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। 5 टाइम है या 4 टाइम है या 6 टाइम है, इस तरह से पूछा है ना, उस पर आपको ध्यान देना है। ओके, डे 7 ही है, कोई एक भी डे ज्यादा नहीं है, 7 डे है। ओके, जिसका नाम हम जानते हैं संडे से लेकर मंडे। ओके, मंडे से संडे तक के। तो इसमें डे 7 मतलब हमारे टोटल आउटकम्स हो गए 7, मतलब डिनोमिनेटर में 7 ही आएगा। ओके, डिनोमिनेटर में 7 ही आएगा। तो अप्रैल में पूछा था, तो अप्रैल में एक्स्ट्रा डे कितने हैं आपको यही देखना है, बस और कुछ नहीं। क्या है, अप्रैल में एक्स्ट्रा डे 2 है। ओके, तो इसका मतलब है कि आपका आंसर आएगा 2/7। ओके, तो 7 में से कोई 2 दिन ऐसे होंगे जो 5 टाइम्स आएंगे, दैट इज अवर प्रोबेबिलिटी। ओके, तो 30 डेज वाला कोई भी मंथ पूछा है, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, तो आंसर यही आएगा 2/7। फेब्रुआरी पूछा है, तो आप ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, उसमें कॉमन ईयर पूछा है कि लीप ईयर पूछा है। ओके, कुछ नहीं लिखा है मतलब कॉमन ईयर है, और लीप ईयर है तो उसमें आइडेंटिफाई किया होगा कि भाई लीप ईयर में, लीप ईयर है तो एक्स्ट्रा डे 1 है, तो आंसर हो जाएगा 1/7। और एक भी एक्स्ट्रा डे नहीं है तो 0, मतलब 0/7, 0 डिवाइड बाय एनी नंबर, इट इज 0, मतलब इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। इसका मतलब है कि फेब्रुआरी मंथ कॉमन ईयर में एक भी एक्स्ट्रा डे नहीं होता, सारे डेज 4 टाइम ही होते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आपको डेज के बारे में देखना है। अब डेज ऑफ मंथ हो गया, तो अब देखते हैं कि ईयर के बारे में किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ईयर में देखा जाए तो ईयर के टोटल डेज है 365, बराबर, ध्यान रखना, और लीप ईयर है तो 366। अब ध्यान रखना, लीप ईयर कैसे पता चलेगा कि भाई ये लीप ईयर है कि नहीं है। तो कोई भी ईयर है, सपोज अभी चल रहा है 2020, ओके, तो कोई भी ईयर के लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आता है तो ये लीप ईयर है। ओके, और रिमाइंडर आता है कोई भी, मतलब 0 नहीं आता है, कोई दूसरा रिमाइंडर आता है, तो वो लीप ईयर नहीं है, कॉमन ईयर है। और लीप ईयर 4 ईयर रिपीट होता रहता है, 4 एवरी 4 ईयर आता है। इसका मतलब है कि अभी 2020 लीप ईयर है, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करना है 4 से। ओके, तो ये हो गया 4 5 जा, ओके, 4 5 जा 20, तो रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब ये 2020 ईयर लीप ईयर है। और हम ये लास्ट जो फरवरी गया उसमें 29 डेज थे, ये हम जानते हैं। ओके, अभी 24 में आएगा दूसरा लीप ईयर, तो इस तरह से पता कर लेना। अब यहां पर आप देखेंगे तो 365 डेज नॉर्मल ईयर में होते हैं, मतलब कॉमन ईयर में होते हैं, तो 365 डेज, एंड एक वीक होता है 7 डेज का। डिवीजन करेंगे तो 7 5 जा 35, 1 रिमाइंडर आएगा, यहां से 15 नीचे उतारेंगे, 7 2 जा 14, 1, तो ये जो बचा, दिस इज अवर एक्स्ट्रा डे। एक्स्ट्रा डे, इसका मतलब सीधा होता है क्या, जब भी कॉमन ईयर है 365 डेज का, इसमें वीक से डिवाइड किया तो टोटल वीक कितने मिलेंगे, 52 वीक कंप्लीट मिलेंगे। ओके, 52 वीक कंप्लीट मिलेंगे, 7 डेज के 52 वीक मिलेंगे, मतलब हर एक डे पूरे साल में 52 टाइम आता है। ओके, इसलिए शायद आपने देखा होगा बावनी, ओके, वो जो संतराम बावनी है, दत्त बावनी है,
रण छोड़ बावनी है, ये सब बावनी मतलब 52 बार, 52 गुरुवार जे करे, ऐसा आपने सुना होगा। ओके, तो इसीलिए ये 52 टाइम्स यहाँ पर पूरे वीक होते हैं। तो वीक में एक बार कोई भी आप कुछ करते हैं तो वो पूरे साल में 52 टाइम्स होता है, इसका मतलब ये हुआ। अब ये 52 ये कंप्लीट वीक है और बची रिमाइंडर 1 मतलब एक डे जो है वो एक्स्ट्रा डे है कॉमन ईयर में। ओके, तो ये जो डे होगा वो साल तो अभी पूरा नहीं हुआ, 365 डेज होंगे तभी साल पूरा होगा, मतलब एक दिन ज्यादा है, तो ये एक दिन ज्यादा है वो एक्स्ट्रा होगा। इसका मतलब कि ये जो डे है वो 53 टाइम आएगा, बाकी सारे डे 52 टाइम आएंगे और ये रिमाइंडर वाला है, मतलब कोई एक डे ऐसा होगा जो साल में 53 टाइम्स आता है। सारे डे नहीं आते, सारे डे 52 टाइम आते ही है, एक ही डे ऐसा होता है जो साल में 53 टाइम्स आता है, 53 टाइम्स। और ये डे कौन सा होता है, तो जो 1 जनवरी होता है वही, जो 1 जनवरी होगा वो डे पूरे साल में 53 टाइम्स आता है। ओके, तो ध्यान में रखना ये सब। अब लीप ईयर हुआ तो क्या होगा, लीप ईयर होगा तो यहाँ 5 की जगह 6 हो जाएगा, और 6 हो गया तो या 15 की जगह 16 हो जाएगा, और 16 हो गया तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब है कि जब लीप ईयर है तो 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। अब 2 दिन एक्स्ट्रा है तो कोई 2 दिन ऐसे होंगे जो पूरे साल में 53 टाइम्स आएंगे, बाकी सारे डेज आएंगे 52 टाइम्स। ओके, 52 टाइम तो हर एक डे आता है, 53 टाइम आने वाले सिर्फ 2 दिन होंगे। कौन सा दिन है वो हम पर्टिकुलरली ईयर पूछा है तो जानकर पता कर सकते हैं कि भाई जनवरी मंथ में 1 एंड 2 डेट, पहली दिन एंड दूसरे दिन जो डे होंगे वो ही 53 टाइम आएंगे, बाकी सारे आएंगे 52 टाइम्स। क्लियर। अब इसमें से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, तो आपको पूछेंगे कि भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू कम थर्सडे 53 टाइम्स इन अ कॉमन ईयर। तो कॉमन ईयर में थर्सडे 53 टाइम्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। यहाँ पर न्यूमेरिकल ईयर नहीं बताया, जैसे यहाँ 2020 हमने लिखा है, यहाँ पर सिर्फ बताया कि कॉमन ईयर। तो आपको पता है कॉमन ईयर में 365 डेज होते हैं। ओके, तो 365 डेज जब है तो एक्स्ट्रा डे कितने, तो अभी आगे हमने देखा था 1 एक्स्ट्रा डे था, तो 1 एक्स्ट्रा डे है, तो इसका मतलब 1 हमारी पॉसिबल आउटकम हो गया, एंड टोटल डेज तो 7 है। यहाँ पर बच्चों ध्यान में रखना 365 डेज मत लेना, 365 डेज पूरे साल के हैं, हमारे पास दिन सिर्फ 7 ही है, 7 डेज में से ही कोई डे होता है, वो रिपीट होते रहते हैं वीक टू वीक, वीक ओवर वीक। ओके, तो डिनोमिनेटर में 7 ही आएगा, ये बराबर ध्यान में रखना। अब दूसरा क्वेश्चन सपोज पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू कम मंडे 53 टाइम्स इन अ लीप ईयर। तो आपको पता करना है कि लीप ईयर में कितने दिन है, तो 366 टोटल होते हैं, 366 है तो एक्स्ट्रा डेज बन जाएंगे 2। इसका मतलब है कि हमारा आंसर आ जाएगा 2/7। ओके, तो 2/7 होगा, क्योंकि 2 पॉसिबल आउटकम है, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा डे है, इसका मतलब 2 पॉसिबल आउटकम हो गए, और टोटल डेज तो 7 ही काउंट करने हैं, डोंट टेक 366 डेज। ओके, अदरवाइज इट विल रॉन्ग। तो ये हो गया हमारा कैलेंडर। अभी डिटेल में और है, पर हमारे लेवल 10th स्टैंडर्ड के लिए इतना काफी है। ओके, तो ये जो थियरी आपको मैंने पढ़ाई है वो बराबर ध्यान से आप समझ लेना और बार बार इसका रिवीजन करते रहना। एक्सरसाइज हम बाद में देखेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो थियरी आपको पढ़ाई है वो सारी आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना और एक्सरसाइज खुद करने की कोशिश करना। 9th में जो मेथड सीखा है उसी मेथड से हमें करना है। ओके, 9th में जो मेथड सिखाई थी उसी मेथड से सम्स
सारे करने हैं। जो भी हार्ड समय या तो नहीं आता है वो हम रेगुलर क्लास में देख लेंगे। ओके, टिल देन बाय। ओके, कीप लर्निंग।